Srikant Devda, Senior Technical Delivery Manager, Vistian Corporation Private Limited, Pune. Sir will introduce us with stress management and meditation. Sir, we are very glad to have you in midst of us, and I would like to invite you to share your expert lecture to our participants. Thank you, sir. Over to you. Thank you. Thank you very much, ma'am, for this introduction. And let me start the session. So with me, my colleague is also there, Ashok Kumar Mishra. So we will be starting the session in just 1 or 2 minutes. So Sure, let sir. me give you brief about what is the session. This session is all about Sahaj Yoga meditation and how the Sahaj Yoga will be going to help you in every part of your life. Either you are a student, either you are a lecturer, professor, housewife, or a senior executive, or a kid, every person will get the benefit from this technique. Also, I want this session to be little more interactive rather than just one person speaking and you all are listening. So I would like to know from the Nikita ma'am, can people will interact with me by unmuting their mic, or only they can interact with me on over a chat? Hello. Hello. Sir, they can interact you, but I will unmute them. Once you want to communicate, I will unmute them. Okay. So whoever want to interact with me, maybe you can unmute yourself and you can ask the question. Sir, they can write it in chat box. And also I understand that you can write on a chat box, so that Yes, is sir. very good. So you can post all the query in chat box. Chat box. Yes, sir. Okay. So let me explain you what is all about the meditation is, why we should do. So first, I will ask one simple question to all the participants. What is the reason for stress? What is the main reason for frustration, anger? Or let's concentrate, what is the main reason for stress? Can someone please post their answer or unmute and say, what is the main reason for stress in your life? Participants, if you want to answer, you can write it in chat box. Then I will give it to sir. Okay, sir, no query in chat box. Okay. Dr. Sukhvinder Sharma is writing laptop screen. Okay, because we think too much and worried about everything. Yeah. So Yes, Nikita Sharma ma'am, thank you. This is a correct answer, ma'am, because we are thinking too much and worried about everything. So the main reason for stress is our thoughts. If you ask me what is the first reason for stress, is a thought. Second reason for stress, I can say thought. And third reason for stress is thought. So how to handle this thought? Because thought will be coming like sine wave. One thought will come, then go immediately another thought will come. Every day we are a huge number of thoughts. So how to handle this? How to handle this? So we need to understand how to handle this. And today we all are here to learn about a very beautiful technique. So yeah, Nikita ma'am, you are perfectly right, by meditating. So maybe I am very happy to see kind of answer, because you know a little bit about meditation and stress, I think. So thank you, ma'am, for sharing this. So as Nikita ma'am suggested the meditation, so let's understand what is a meditation. So now my another question to all the participant is, what is a meditation is? Can someone please tell me what is a meditation is?
What is the meditation? Okay. Anyone want to share? Okay. Concentrate our mind, maybe not correct. What else? Okay, let me explain you what is a meditation is. If you observe, but before that, let's do one experiment. Let's close our eyes for a few seconds and observe yourself, your brain, what is going on inside your brain. Let's observe yourself by just closing your eyes for a few seconds. Now you can open your eyes and tell me what exactly happened when you close your eyes. Because we all know that Buddha, Mahavira, Sant Naneshwar, all the great saints used to do meditation by just closing the eyes and sitting at some quiet place. So when you close your eyes, when you are sitting at some quiet place, what is going on inside your brain? So there is an answer from Nikita ma'am, like many thoughts juggling in mind right now. Yeah, you are correct now. So if you observe properly, let me show you the on screen. You are getting a thoughts. Thoughts may be from the past or thoughts may be from the future. You are always thinking, always jumping between the past and future. So one thought will be from the past or another thought may be from the future, or maybe vice versa, or maybe a different way. So maybe some thought give a happiness to you and some thought give a sadness to you. And this thought cycle is continuously there in our brain. So how to do meditation? Because if we are getting a continuously thought, there is no point of doing a meditation. So what is exactly meditation is all about? So meditation is nothing but the gap between two thoughts where we do not have any thought. You can see the next diagram. So one thought will come, then there is no thought, and then another thought will come. So this gap between two thoughts is called as a thoughtless awareness, or in Hindi we call as a nirvicharita. In Sanskrit we call as a turiya state. So we are going to achieve this state in today's practical. When you will going to achieve this state, you will observe that all the problem, physical, mental, spiritual problem will go away once you achieve this state. So a meditation is nothing but the thoughtless awareness. In Hindi we call as a nirvicharita. Okay, one more question. Which language is comfortable for English or Hindi? Which one all participants are comfortable? Or in mix, you want mix? You can respond on a chat. Till the time I can continue with English. Okay. So Participants can write it chat box. This is all about the meditation. What is the meditation? Now let's understand what is a yoga. Can someone please tell me what is a yoga? Whatever you know. So let's go with the okay. So I can Hindi is most preferably okay. So Haman Singh sir, thank you for sharing. हम हिंदी में भी बोलेंगे आज थोड़ा बहुत. तो अगर आज हम योगा क्या है ये समझेंगे और इसके बाद में सहज योग क्या है वो समझेंगे. ठीक है. So let's understand the yoga and Sahaj Yoga, both the thing. What is yoga and what is Sahaj Yoga? So if you observe this, our human body, we have a 2 hand, 2 eyes, legs. This is our physical body. But inside that physical body, we have one internal body system, which we call as a subtle system. और हम उसको सूक्ष्म नाड़ी तंत्र बोलते हैं. ठीक है. अब ये क्या होता है? ये नाड़ियों से बना होता है और चक्रों से बना होता है. तो अभी अगर आप देखो इसमें तो 3 नाड़ियां आपको हमारे बॉडी में दिख रही है, जिसको हम लेफ्ट साइड की नाड़ी, जिसको हम लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या ईगा नाड़ी बोलते हैं. राइट साइड की नाड़ी जो येलो कलर में है, हम उसको पिंगला नाड़ी
या फिर राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और जो बीच की नाड़ी है जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, संस्कृत में सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ये क्या होता है? तो अब हम ये समझेंगे कि ये नाड़ी हमारे शरीर पे किस तरीके से प्रभाव डालती है। और हमारे शरीर में 7 एनर्जी सेंटर रहते हैं, जिनको हमने 7 पॉइंट में दिखाया है: इनोसेंस, क्रिएटिविटी, पीस, लव एंड कंपैशन, कलेक्टिविटी, फॉरगिवनेस और इंटीग्रेशन। ये इनकी इनेट क्वालिटी है। इनेट क्वालिटी यानी अगर ये चक्र या प्लेक्सस अच्छे रहे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, आपके अंदर शांति आती है, पीस आती है, लव एंड कंपैशन जनरेट होता है, कलेक्टिविटी आती है, क्षमा करने की जो शक्ति है जो आज सबसे इंपॉर्टेंट है इस कलयुग में, वो आपके अंदर डेवलप होती है। तो ये सारी चीजें आप जब योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे तो जनरेट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योगा एक्चुअली है क्या? ये क्या एक एक्सरसाइज है, क्या एक आसन है, या अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की मेथड है? क्या है योगा? अगर आप योगा सर्च करो वर्ड गूगल पे, या कोई रीड करो कोई पुराने बुक्स, तो उसमें क्लियरली दिया है योगा यानी कनेक्शन, योगा यानी यूनियन। ये कनेक्शन या यूनियन आप पूछोगे कि किसके बीच में? भाई योगा तो पता है, यूनियन आपने बता दिया, लेकिन ये यूनियन किसके बीच में हो रही है या कनेक्शन कहाँ पे तैयार हो रहा है? तो ये हमारे अंदर जो एक शक्ति रहती है जिसको हम कुंडलिनी बोलते हैं। तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो हम जहाँ पे बैठते हैं वहां पे जो सैक्रम बोन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले पार्ट में होता है, जिसको हम ट्रायंगुलर बोन करके अभी हम देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो इसके अंदर सर्कुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम कुंडलिनी बोलते हैं। तो ये हमारी अंदर की एनर्जी है जिसको हम अपनी मदर भी बोलते हैं। ये एनर्जी सभी के शरीर में रहती है। जैसा सब जब जन्म लेते हैं तब आंख रहती है, नाक रहते हैं, उसी तरीके से ये एनर्जी भी हम जब बाय जन्म लेते हैं तब हमारे अंदर एग्जिस्ट रहती है, तो रहती है। तो क्या होता है योगा यानी क्या होता है? जब ये एनर्जी एक्टिवेट होती है, शक्ति जागृत होती है और सर के ऊपर जाके सर से बाहर निकलती है और कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होती है, तब हम उसको योगा बोलते हैं। The connection between our own energy with the cosmic power called as a yoga, that is called as a union। और जब वो योगा या यूनियन इस्टेब्लिश होता है तब आपको थॉटलेस अवेयरनेस यानी निर्विचारिता प्राप्त होती है। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हमने अपनी आंखें बंद की थी, लेकिन आंखें बंद किए बाद में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको विचार आ रहे थे, तो फिर आपका ध्यान कैसे होगा? नहीं होगा। तो सेम चीज जब आप विचार सेम चीज जब आपका योगा होगा, योगा आपके अंदर घटित होगा, तो आपको निर्विचारिता प्राप्त होगी। और हम उसी के लिए आज यहाँ पे है। हम आज कुछ प्रैक्टिकल स्टेप करेंगे जिससे हमारी ये शक्ति जागृत होगी, और जब ये शक्ति जागृत होगी तो हमको निर्विचारिता प्राप्त होगी। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये शक्ति जागृत होगी, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा? will you get some kind of indication कि ये शक्ति जागृत होगी? Yes, you will get the indication as part of a beautiful cool or hot vibration or a breeze coming from your both the palm and top of your head, which indicate that the energy lies within your sacrum bone is activated। आपके शरीर में जो शक्ति है वो जागृत हो गई, इसका इंडिकेशन आपके दोनों हाथों पे और सर के ऊपर मिलेगा। उसी को हम बोलते हैं अवेकनिंग ऑफ अवर कुंडलिनी, कुंडलिनी जागरण, और अवेकनिंग ऑफ अवर डॉर्मेंट एनर्जी विच इज वी कॉल्ड एज अ कुंडलिनी। तो ये जब शक्ति जागृत हो जाएगी तब आपको अपने हाथों पे और सर के ऊपर ठंडा या गर्म महसूस होगा, आपको निर्विचारिता प्राप्त होगी, आपको बहुत शांत लगेगा, आपके विचार रुके रहेंगे, आपको अंदर से पीसफुल बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये जब सारी चीजें होगी तब आपको पता चलेगा कि हमारी ये शक्ति जागृत हो चुकी है। ठीक है, अब लेट्स गो अगेन विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाड़ीज। ये नाड़ीज क्या होती है? अब हमने तो कुंडलिनी शक्ति को समझ लिया, ये जागृत कैसी होती है ये समझ लिया, योगा क्या है ये समझ लिया, मेडिटेशन क्या है ये समझ लिया। अब ये नाड़ीज और चक्र का क्या चक्कर है वो हम समझते हैं। अगर आपके आसपास में कोई आदमी है जो बहुत आलसी है, हरदम भूतकाल के बारे में सोचता है,
बहुत ज्यादा इमोशनल है। जैसे होता है ना, कोई किसी को कुछ बोल दिया तो बहुत ही इमोशनली रिएक्ट कर देता है, अरे हमने तो एक वर्ड बोला, इतना इमोशनली लेने की क्या जरूरत है। या बहुत अकेला अकेला रहता है या डिप्रेशन में रहता है। अगर कोई बंदा, any person near around you, if he is reacting like this, is very lethargy, focusing on past, over emotional, depression and loneliness, that means he has a problem in his left side, यानी जो ईड़ा नाड़ी है उसके अंदर असंतुलन है, उसके वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। सिमिलर वे, अगर आपके आसपास कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, मेल या फीमेल, अगर वो बहुत ओवर एक्टिव है, बहुत फ्यूचर के बारे में सोचता है, बहुत ज्यादा काम करता है, दिन भर रात भर काम 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 करता है, बहुत अग्रेसिव आदमी है या एंग्री आदमी है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, तो इस प्रकार का अगर व्यक्ति आपके आसपास में है, तो आप समझ लो कि वो राइट साइडेड पर्सनालिटी है, या उसके राइट साइड, जिसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं, उसके अंदर असंतुलन है। ठीक है। लेकिन जिसकी लेफ्ट साइड यानी ईड़ा नाड़ी और जो राइट साइड पिंगला नाड़ी, ये संतुलन में है, बैलेंस में है, वो पर्सन एकदम पीसफुल रहता है, बहुत जॉयफुल रहता है। आप उसको कुछ भी बोलो, बहुत हैप्पी रहता है, रिएक्ट नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, एकदम सारी चीजें पॉजिटिव वे में लेता है। वो पर्सनैलिटी बैलेंस पर्सनैलिटी है, वो सक्सेसफुल लीडर है, वो बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है। ठीक है। और आज हम इस सहयोग माध्यम से हम बैलेंस होने की कोशिश करेंगे। हम आज इस सहयोग के माध्यम से एक मानव से महामानव, क्योंकि जितने भी आप लीडर्स अगर देखो तो वो बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी रहते हैं। उनकी बैलेंस पर्सनालिटी के वजह से ही वो एक नॉर्मल पर्सन से एक एडवांस पर्सन या एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें डेवलप होती है। और आज सहयोग के माध्यम से हम आप एक नॉर्मल पर्सन से एक लीडर, एक सक्सेसफुल पर्सन, एक बैलेंस पर्सन बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब ये तो हो गया नाड़ीज के बारे में। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, अगर आपको इसका आवाज क्लियर है तो हम पूरा सुनते हैं ये वीडियो। Right. Become united, which is the yoga, with the divine. We have two sides in our system of autonomous nervous system, left and right. We call as left and right sympathetic nervous system. The left side caters for our emotions, for our past, our desires. The right side caters for our action, physical and mental. If you indulge into one too much and go too far with it, you develop an imbalance within yourself. In the center lies the third power, which we call as parasympathetic nervous system. This is the channel which is the central part of the center. When the Kundalini rises through you, it leaves you in the balance because it rises in the center of the system. So this is the minimum that happens, that you get your balance. This is the last breakthrough of our evolution, where you have to get connected to the divine, you have to feel it on your central nervous system, and that's how you get your self-realization. आप लोगों को ये वीडियो पूरा इसका ऑडियो क्लियर था सब लोगों को? होप आप लोगों का आप लोग सुन पा रहे थे ये वीडियो। अच्छा, ये वीडियो किसका है? ये ओके, थैंक यू। ये वीडियो जो है ये डॉक्टर श्री निर्मला श्रीवास्तव जी का है। और ये डॉक्टर श्री निर्मला श्रीवास्तव जी, जिनको हम श्री माता जी निर्मला देवी भी बोलते हैं, इन्होंने सहज योगा डिस्कवर किया है 1970 में। और इन्होंने डिस्कवर किए बाद में ये पूरे वर्ल्ड में 170 देशों में आज फॉलो होता है फ्री ऑफ चार्ज। सबसे पहले क्या था, पुराने जमाने में श्री माता जी निर्मला देवी ने कोई नई टेक्निक इन्वेंट की क्या? नहीं। इसके पहले भी ये कुंडलिनी अवेकनिंग था। अगर आप रामायण देखो, महाभारत देखो, गीता देखो, संत ज्ञानेश्वरी देखो, कुरान देखो, मुस्लिम में गुरु ग्रंथ साहब, सिख में, सब जितने भी धर्म है उसमें सब में ये कुंडलिनी के बारे में बताया है, लेकिन अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं। जैसा
कुरान में मुस्लिम में रूह बोला है, हिंदू में कुंडलिनी बोला है, और अलग अलग रिलीजन्स में इसको अलग अलग वर्ड बोला है, ठीक है। लेकिन पर्पस एक ही है। लेकिन इसके पहले क्या होता था कि एक गुरु एक शिष्य को ये नॉलेज देता था, लेकिन श्री माता जी निर्मला देवी ने एनमास रियलाइजेशन या एनमास मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट किया 1970 से, और उसके बाद में ये एक आदमी बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज दे सकता है, और ये नॉलेज एग्जिस्ट हुआ है 1970 के बाद में, और वही नॉलेज बताने वाले हैं जो हमको बताया है, वही अब हम आपको ट्रांसफर करें। तो ये हो गया श्री माता जी निर्मला देवी के बारे में। अब हम समझते हैं कि हमने नाड़ी समझी, योगा समझा, मेडिटेशन समझा, लेकिन चक्रा, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में प्लेक्सस बोलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में प्लेक्सस भी बोलते हैं। तो सबसे पहला है मूलाधार, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या एक्सक्रिएटरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। सेकंड जो है वो स्वादिष्टान है, जो हमारे ब्रेन के लिए, जो ग्रे सेल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्रेन, उसके लिए जो उसको फूड चाहिए, जो खाना चाहिए, वो होता है ग्रे सेल, और जो ग्रे सेल जनरेट करने का काम जो है वो स्वादिष्टान चक्र करता है। तीसरा जो है वो नाभि चक्र है, आपका जो भी खाते हैं, डाइजेशन, जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम, या आपके पूरे नाभि या पेट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम या ऑर्गन है उनको कंट्रोल करने का काम नाभि चक्र करता है। उसके बाद में होता है हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ये 7 चक्र हमारे शरीर में रहते हैं, जो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। अब ये रोग, जिसको हम डिसीज बोलते हैं, ये एग्जैक्टली क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, अगर सपोज आपको कोई भी रोग है, अगर आपको कोई भी डिसीज है, तो एग्जैक्टली क्या है, ये कोई पर्टिकुलर बॉडी का जो ऑर्गन है, इसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। ये क्यों कम होती है? क्योंकि इसको जो कंट्रोल करता है पर्टिकुलर चक्र, फॉर एग्जांपल डाइजेशन। डाइजेशन अगर आपका अच्छा नहीं हो रहा है, आपको गैसेस हो रहे हैं, आपको लीवर का प्रॉब्लम है, आपको किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो कम हो गई। अब ये कम क्यों हुई? क्योंकि इसको जो कंट्रोल करने वाला नाभि चक्र है वो इनबैलेंस हो गया, असंतुलन में चले गया। जब ये असंतुलन में जाता है, तब हमको ये अलग अलग रोग होते हैं या डिसीज बोलते हैं जिसको हम। और अगर हम ध्यान के माध्यम से इनको संतुलन में ला ले, इनको बैलेंस में ला ले, तो ये सारे रोग दूर हो जाते हैं, कोई भी मेडिसिन लिए बिना। विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन यू कैन क्योर ऑल काइंड ऑफ साइकोसोमैटिक डिसीज। So this is a very important key part of Sahaj Yoga. Now I can show you in animation part how this energy get activated within our body. If you observe this, this is the human body. ये हमारी human body है, इसके अंदर 3 नाड़ीज और 7 एनर्जी सेंटर है, और एक सैक्रम बोन है। इस सैक्रम बोन के अंदर कुंडलिनी शक्ति है। वो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, तो सबसे पहले वो मूलाधार, जो सबसे पहला एनर्जी सेंटर है, वहां पे जाती है। उसके बाद में स्लोली वो जाती है सेकंड एनर्जी सेंटर, जिसको हम स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। ये एनर्जी सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, हमारी मेमोरी पावर को इंप्रूव करता है। उसके बाद में ये एनर्जी धीरे धीरे नाभि चक्र में जाती है। नाभि चक्र मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अपने पूरे बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करता है। उसके बाद में ये एनर्जी धीरे से हृदय चक्र पे जाती है, जिसको हम हार्ट चक्र बोलते हैं। ये हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन कंट्रोल करता है, हार्ट को कंट्रोल करता है, हमको कॉन्फिडेंस देता है। इसके बाद में ये एनर्जी विशुद्धि चक्र, जिसको हम ये विशुद्धि चक्र जो हमारे थ्रोट पे रहता है, यहाँ पे जाती है। ये हमारे ईयर, नोज, आईज को कंट्रोल करता है, हमारे सारे सेंसिंग ऑर्गन को कंट्रोल करता है। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, कलेक्टिविटी की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद में ये नेक्स्ट एनर्जी सेंटर, जिसको हम आज्ञा चक्र या ऑप्टिक चेस्मा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, यहाँ पे जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो आपको माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, ये बिकॉज ये चक्र इनबैलेंस होने की वजह से। उसके बाद में एनर्जी सर के ऊपर यहाँ से टच होते बाहर आती है। उसी समय हमको ठंडा या गर्म एहसास होता है, जिसको हम कूल ब्रीज बोलते हैं, या संस्कृत में चैतन्य बोलते हैं। और यही चीज हमको प्रैक्टिकल में महसूस करना है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको श्री माता जी निर्मला देवी के बारे में बता दिया है।
इन्होंने बहुत काम किया है। ये पूरी टेक्निक जो सहज योगा टेक्निक है ये अक्रॉस द वर्ल्ड फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ये क्यों फ्री है? क्योंकि श्री माता जी निर्मला देवी बोलते हैं कि हम अपने खुद की एनर्जी जो खुद की शक्ति है उसका कोई चार्ज नहीं कर सकते। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो खुद की शक्ति है, और जो नेचुरल प्रोसेस है अवेकनिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए सहज योगा अक्रॉस द वर्ल्ड, यू कैन गो एनी सिटी स्टेट कंट्री, यू विल फाइंड अ फ्री सहज योगा सेंटर। देयर इज नो चार्ज फॉर एनी सहज yoga activity, nothing, no hidden charge, nothing. Okay, now why Sahaj Yoga is a unique method? Because with Sahaj Yoga you can diagnose your own problem, you can cure your own problem. This is completely natural technique, very scientific technique, बहुत spontaneous technique है, no physical effort required, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो ये शक्ति जागृत हो जाती है, और इट्स लिविंग प्रोसेस, आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने हाथों पे। तो अब ये हो गया प्रैक्टिकल पार्ट। तो क्या हम, ये हो गया थियरी पार्ट, क्या अब हम प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करें? ऑल आर रेडी? कैन वी डू द प्रैक्टिकल पार्ट? यू कैन से इन द चैट यस इफ यू ऑल आर रेडी। आई वांट बिग यस। सो ऑल आर रेडी? ओके, I see very less yes. Can you please respond on the chat if you all are ready for this practical part? Yes, sir, we are ready. Okay. On chat, I guess people are still there, right, with me? I see only 46 participants, but that is okay. Okay, I can see some message on chat, right? Okay, Praveen sir say yes. Okay, thank you. Raut sir say yes. So I just want to say how many people are active there, how many people are listening, and how many people are feeling this topic is interesting. Okay, so if you interact on a chat, I will get the indication, and that will give a very good thing. So the next next 30 minutes or 10 minutes is very important, because once we do the practical, the whole thing about Sahaj Yoga is a practical part. If we do a proper practical, you can feel the cool breeze on your palm, you can feel the awakening of Kundalini, and this is for what we are here. So after this session, you will take a real experience of yoga, real experience of balancing, and real experience of meditation. So if you give your more than 100% in next 10 minutes, you will definitely feel the joy of yoga, you will definitely feel the bliss of yoga. But I need your next 10 minutes with 100% concentration. So the what is the step? I will explain you the step with the open eyes first. Maybe in 1 or 2 minutes we will understand the step, and then we can do this step with the closed eyes. So step number 1 is keep your both the hand on your lap, and palm will be facing toward the sky. So this is the step number 1. Keep your both the hand on your lap and palm will be facing toward the sky. This is the step number 1. Step number 2 will be all the step we are going to perform with the right hand. So raise your right hand, put on your heart little left side. Raise your right hand, put on your heart little left side. So this is the step number 2. Step number 3, raise your right hand, put on your forehead horizontally like this. अपना जहां पे सर दुखता है या टीका लगाते हैं वहां पे ऐसा आड़ा रखना है, थोड़ा जोर से दबाना है, सर को थोड़ा झुकाना है धरती की ओर, ठीक है, थोड़ा धरती की ओर झुकाएंगे इस तरीके से. और स्टेप नंबर 3, रेज अवर राइट हैंड, पुट ऑन टॉप ऑफ अवर हेड, सर के ऊपर तालू भाग पे रखेंगे, थोड़ा जोर से दबाएंगे और घड़ी की दिशा में 7 बार फिराना. रोटेट 7 टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हमारा सर स्टेबल रहेगा, हाथ को घुमाना है ताकि सर के ऊपर का जो स्किन है वो अपने हाथ के साथ रोटेट हो 7 बार. ठीक है, ये 3 सिंपल स्टेप है. सो हम क्या करें, हम 3 स्टेप. If you are all ready, we can do these 3 steps. So I request you all participants, let's close our eyes. If you are sitting on a ground, sit in a Sukhasana or Padmasana. If you are sitting on a chair, make sure that your feet are away from each other. Let's close our eyes. धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करना है, प्रसन्न चित्त होके बैठना है.
अपना स्पाइनल कॉर्ड अपराइट और स्ट्रेट रहेगा। ये 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 10 मिनट हमको रियल योगा या रियल मेडिटेशन का एक्सपीरियंस देने वाले हैं। हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं ये 10 मिनट। तो ये 10 मिनट के लिए हम पूरा 100% देंगे। अपनी दोनों आंखें बंद करना है, स्पाइनल कॉर्ड अपराइट और स्ट्रेट। बंद आंखों से हम अपने विचारों को देखेंगे, इसमें उलझना नहीं है, बस इसे देखना है। अपना चित्त कंसंट्रेशन सर के ऊपर तालु भाग पे रखेंगे और धीरे धीरे हमारा राइट हैंड उठाएंगे और हृदय पे रखेंगे। रेज अवर राइट हैंड, पुट ऑन अवर हार्ट, लिटिल लेफ्ट साइड। सीधा हाथ उठा के हृदय पे रखना है, थोड़ा जोर से प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे। मदर, आई एम द प्योर स्पिरिट। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मदर, आई एम द प्योर स्पिरिट। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। यह प्रार्थना हमें 12 बार दोहराना है। मदर, आई एम द प्योर स्पिरिट। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। Let's pray 12 times in our heart by pressing our right hand on our heart. Mother, I am the pure spirit. Slowly वही राइट हैंड हमें सर पे आड़ा रखना है। जहाँ पे हमारा सर दुखता है टीका लगा के वहां पे आड़ा रखेंगे अपना राइट हैंड और वहां पे प्रेयर करेंगे कि मुझे जिस जिसने भी चोट पहुंचाई है मैं उन सबको क्षमा करता हूँ। I forgive everyone whoever created a problem to me in my past. Don't think about any individual, just forgive, just forgive. सबको क्षमा करना है। Now slowly raise our right hand, put on top of our head. सर के ऊपर तालु भाग पे रखेंगे। स्ट्रेच करेंगे, अपने हाथों को पूरी तरह तान लेंगे, सर के ऊपर मध्य भाग में रखेंगे, थोड़ा जोर से दबाना है, सर को थोड़ा झुकाना है और घड़ी की दिशा में 7 बार। और यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, मदर प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। श्री माता जी, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। मदर प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। श्री माता जी, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। ये प्रेयर हम 7 बार करेंगे और अपना हाथ 7 बार सर के ऊपर घुमाएंगे। मदर प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। अपने दोनों हाथ गोद में रखेंगे।
आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में, अपना अटेंशन सर के ऊपर, और हम ध्यान की स्थिति में जाएंगे। शरीर में अब कोई भी हलचल नहीं, कुछ समय के लिए ध्यान करेंगे। अब हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। लेट्स स्लोली ओपन आवर आईज। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। और अपने दोनों हाथों पे और सर के ऊपर तालू भाग पे देखना है कि हमको कुछ ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है या नहीं। अब हम धीरे धीरे अपना राइट हैंड सर के ऊपर लेके जाएंगे तालू भाग पे, और थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करके देखना है, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट, कि हमको कुछ ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है या नहीं। अब फील कीजिए कुछ ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है या नहीं। बहुत सूक्ष्म एनर्जी है। अब अपना राइट हैंड हम गोद में रखेंगे, लेफ्ट हैंड से ट्राई करेंगे। देखिए कुछ ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है। बहुत सूक्ष्म एनर्जी है। सर से थोड़ा सा किंचित ऊपर रखना है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखना है, थोड़ा सा रखना है। ठीक है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट करके देखेंगे कि कहाँ से ठंडा या गर्म आ रहा है। ठीक है, फिर से लेफ्ट हैंड गोद में राइट हैंड से करके देखेंगे। थोड़ा सा सर धरती की ओर झुका के फिर से देखना है कि कुछ ठंडा या गर्म आ रहा है। थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ऊपर रखना है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा एकदम ऊपर। अब दोनों हाथ को पूरी तरह स्ट्रेट करना है, इस तरीके से जितना हम स्ट्रेट कर सके उतना स्ट्रेट करना है। आकाश की तरफ लेके जाना है पूरी तरह स्ट्रेट, सर पीछे की ओर झुका हुआ। और यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, या यहाँ पे हम एक प्रश्न पूछेंगे अपने आप से, मदर, दिस द एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? क्या यही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति है? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है, क्या यही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति है? और धीरे धीरे दोनों हाथ हृदय के लेवल पे लाएंगे, नमस्कार करेंगे, और अपने हाथों को खोलना है इस तरीके से, एकदम धीरे धीरे पास में लाना है, खोलना है, पास में लाना है। बहुत ज्यादा दूर लेके नहीं जाना है, बस थोड़ा सा पास में थोड़ा सा दूर में, और बहुत स्लो करना है ये, एकदम फास्ट में नहीं, थोड़ा सा स्लोली करके देखना है कि आपको कुछ महसूस हो रहा है या नहीं। कुछ ठंडा कुछ गर्म,
स्लो करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है, स्लो करना है, स्लो, बहुत स्लो करके देखना है आपको। कुछ महसूस हो रहा है ठंडा या गर्म? ठीक है, अब नाउ रिलैक्स। अब किसको किसको ठंडा महसूस हुआ है, किसको किसको गर्म महसूस हुआ है? कैन यू प्लीज लेट अस नो on the chart? How many people feel a cool? How many people feel the hot? Can you please let me know on the chart? I'm very happy to listen all the participants who are feeling the hot, who are feeling the cool. Okay, so on chart, it's very good. Cool. Okay, Richa ma'am feel a cool. Thoughtless. Okay. Who else feel a cool? Okay. Okay, that is very good. So now what I did, I have posted one feedback form on the chart. On that feedback form, there is a link, and if you fill this feedback form, you will automatically get one automated email. On that email, you will receive the today's PPT, all other information of Sahaj Yoga, and many more things. So now I will request you all participants, it take a 1 or 2 minutes, but please fill this PPT feedback form. That will be great help to everyone. Now we have a question answer session and how to meditate at home. So before we start the question answer session, maybe I request you all the participants take your fill this feedback form and take your 1 or 2 minute time and type your question on a chat. It may be for the any kind of disease like psychosomatic disease, health problem, any question you can post on a chat. We will going to address your question answer. So we are giving you 2 or 3 minute time, and then we will explain you how to meditate at home. Till the time you type your question, I will ask Mr. Ashok Kumar Mishra to share his experience on Sahaj Yoga in just 5 minute time. Okay, go ahead, Ashok sir. Thank you, Chandrakant sir. A nice meeting, Nikhar Bhatlagar. I remember my boss was Bhatlagar, and he has brought me in Sahaj Yoga. So very अच्छा इंसिडेंट आ गया, माने कोइंसिडेंस है. सो थैंक्स निखार भटलागर, और आपके ही कोई रहेंगे पूर्वज. एनीवे, सो कमिंग बैक टू 25 years इन सहज योगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अमेजिंग है. बिकॉज यू नो मैं इसको अगर एक दिन नहीं कर पाया तो बहुत मेरा प्रोग्राम पूरा दिन का गड़बड़ हो जाता है. तो समझ लीजिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हर सेकेंड अगर आनंद में रहना है, जॉयस माइंड रखना है. एंड जॉयस माइंड इज वेरी पावरफुल, यू नो. इट कैन वर्क वंडर्स, इट कैन क्रिएट, इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग. यू नो, योर अटेंशन बिकम सो पावरफुल दैट जहाँ पर भी आप अपना अटेंशन रखेंगे वो काम हो जाएगा. तो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. और सेफ्टी, लाइफ विल बिकम वेरी सेफ. कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है, तो आप बच जाते हैं. पहले तो होगा नहीं, अगर हो गया तो आप बच जाते हैं. और लोग सब का क्या होगा बोल नहीं सकते हम. वो भी बच जाए तो अच्छा है, बट अगर वो सहयोग करेंगे तो गारंटीड है. देन यू नो, पास्ट इज डेड एंड फ्यूचर इज अननोन. वी शुड नॉट गो इन पास्ट एंड फ्यूचर, बिकॉज पास्ट इज डेड. क्या फायदा, टाइम वेस्टेज है. फ्यूचर इज अननोन, again time wastage. So remain in present. I'll give one example. We go to 5-star hotel for eating good food, listening to music, ambience. अब वहाँ पर जाके हम घर की बात करते हैं, फूड को एंजॉय नहीं कर पाते. So living in present is very important, and through this meditation, living in present will become a way of life. Automatically, वो आपकी कुंडली पावर है ना, आपको हमेशा प्रेजेंट में खींच के लेके आएगी. आपको पास्ट में और फ्यूचर में जाने नहीं देगी. तो पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपका माइंड जो है ना हल्का हो जाता है. यू आर स्ट्रेस फ्री. जैसे कंप्यूटर में अगर ज़्यादा ओवरलोड हो गया तो वो हैंग हो जाता है, उसी तरह से अपना भी माइंड वगैरह हैंग हो जाता है अगर ज़्यादा प्रेशर आया तो. इसके लिए हम मेडिटेशन करेंगे तो आवर माइंड विल बी एम्प्टी, सो दैट वी कैन टेक ऑन वेलकम प्रॉब्लम्स एंड एंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. एंड उसके यूनिक आंसर्स आएंगे.
जो कि कोई भी और मेथड से जो भी और लोग कुछ आंसर दे सकते हैं उससे कहीं फार बेटर एंड अमेजिंग रहेंगे. आई गॉट सो मेनी एग्जांपल्स टू शेयर विथ यू. से फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट है, क्योरिंग ऑफ वन सेल्फ है. सो आप जो बोलिए हम उसका एग्जांपल बता दें. एक बता सकता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है यहाँ पर. मैंने अपना नंबर दिया हुआ है. यू कैन कॉल मी, यू कैन गिव मी योर नंबर, आई विल कॉल यू एंड let us be in touch with each other till you get results, till you are on your own. कोऑपरेशन मिलता है, डेडलाइंस आपके मीट होते हैं, कम्युनिकेशन वेरी स्ट्रांग हो जाता है. जो आप बोलते हैं दूसरा समझता है और अंडरस्टैंड एंड ही लिसन्स एंड अंडरस्टैंड्स एंड ही इम्प्लीमेंट्स ऑल्सो. नहीं तो बहुत सारे कम्युनिकेशन है जो इम्प्लीमेंट नहीं होते. तो उसका कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हो गया? नो, नथिंग. दैट मीन्स आपका जो पावर ऑफ कम्युनिकेशन वो नहीं है. बट व्हेन यू प्रैक्टिस योगा, आपका कम्युनिकेशन का पावर इतना ज्यादा हो जाता है कि पीपल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग व्हाट एवर यू से. व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, फर्स्ट चक्र आपका जो खुलता है ना, आप इसी में समझ जाते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जो कि बहुत डिफिकल्ट है. बड़े बड़े साइंटिस्ट ये लोग को भी ऐसा ऐसा कभी स्थिति आती है माइंड की तो लोग समझ नहीं पाते कि क्या डिसाइड करें, ये सही है कि ये गलत है. देयर इज अ वेरी फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग समटाइम्स. इसीलिए बहुत बड़े बड़े लोग भी गलती कर बैठते हैं और फिर जेल में जाते हैं. तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब ये पावर आपके अंदर में है तो यू शुड नो व्हाई इट इज देयर. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका काम क्या है, हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ इट. And I have used for 25 years and I'm enjoying life as never before. Every second, my mind is joyous. That's why I can be very creative. I can be solving problems. इम्यूनिटी बढ़ जाती है अपने बॉडी में. ये बाहर के छोटे बड़े जो बीमारियां, ये आजकल जो कोविड के लिए सब हुआ करके रखे हैं, वो सवाल ही नहीं उठता आपको पकड़ने का. So these are the few things which I have told you. Attention becomes very strong. Attention is God. ऐसा मानते हैं. इतना पावरफुल चीज है बिकॉज सब चीज अटेंशन से होता है. तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, आई कैन गिव यू एग्जांपल्स. अब आप बताइए कौन से एग्जांपल दूं मैं. अपना टाइम मैनेजमेंट का दूं, अपने को क्योर करने का वाला दूं, कि और कुछ आपको जो इंटरेस्ट की चीज है आप उसका बताइए. आई गिव यू वन एग्जांपल, देन इट विल बी मोर इम्प्रेसिव. यू नो, अभी हम लोग तो थ्योरी पार्ट बता दिया, आपको प्रैक्टिकल भी करा दिया. जिसी को कुछ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ठंडा लगा होगा या नहीं लगा होगा, बट वर्क हैज स्टार्टेड इनसाइड यू. जस्ट आप बैठे हैं हमारे सामने कि काम शुरू हो जाता है. बिकॉज ये कुंडलिनी शक्ति है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, आपकी भी जागृत हो जाती है बाय जस्ट कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो काम तो शुरू हो गया, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा. टुडे इटसेल्फ यू कैन गेट सम, आपके में चेंज आपको महसूस होगा. सो प्रैक्टिस विल मेक इट फर्दर एनहांस रिजल्ट, फास्टर रिजल्ट आपके पास आएंगे. इसके लिए वो एक चीज है. लेकिन आपको एग्जाम्पल में बताइए, आप कौन सा एग्जाम्पल सुनना चाहते हैं मेरे से. आई हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स टू कन्विंस यू. आप हमको एक बताइए कि ये टाइम मैनेजमेंट का बताऊं कि अपना क्योरिंग का बताऊं. बताइए, एनीबडी. मैडम भटनागर, आप ही पूछ लीजिए हमसे कि क्या चीज का स्टोरी बताऊं मैं. 2 मिनट में मैं बताऊंगा स्टोरी. Thank you, Ashok Kumar Mishra sir. Maybe we can take some more question. We can explain how to balance at. हम बैलेंसिंग कैसे करें, घर पे ध्यान कैसे करें, वो एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद में अशोक सर जी के टाइम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हम सुन लेंगे और जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो भी सुन लेंगे. थैंक यू सर. तो अब सबसे पहले तो हम समझ ले कि हम ध्यान घर पे कैसे करें. अब ये तो हो गया, आज हमने इंट्रोडक्टरी सेशन ले लिया, हमने समझ लिया हाथों में ठंडा या गर्म आ गया, लेकिन अब घर पे ध्यान कैसे करें. तो घर पे ध्यान करने के लिए अपना लेफ्ट हैंड गोद में रखना है, राइट हैंड धरती पे रखना है. आप देख सकते हो हाउ टू बैलेंस अवर लेफ्ट साइड ऑन अ स्क्रीन. और यहाँ पे बोलना है जस्ट मदर प्लीज बैलेंस माई लेफ्ट साइड. बस इतना बोलना है और कुछ नहीं बोलना. और 3 से 4 मिनट इसी स्थिति में आंखें बंद करके रहना है और अपने दोनों हाथों पे देखना है कि हमें क्या महसूस हो रहा है. ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड बैलेंसिंग. उसके बाद में फिर हमारा हाथ वापस गोद में लेंगे और फिर राइट साइड बैलेंसिंग करेंगे. तो राइट हैंड गोद में रखेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ रखेंगे और यहाँ पे अपने हृदय में एक प्रार्थना करेंगे, मदर प्लीज बैलेंस माय राइट साइड. बस, और कुछ नहीं बोलना है, बस इतना बोलना है
कि मेरे शरीर में जो भी उष्णता है या असंतुलन है उसे संतुलित कर दीजिए। मदर प्लीज बैलेंस माय राइट साइड। और ये 3 से 4 मिनट इस तरीके से बैठना है। उसके बाद में दोनों हाथ गोद में रख के आंखें बंद करके अपना कंसंट्रेशन सर के ऊपर रखेंगे और ध्यान करेंगे। तो ये क्रिया हमें रोज सुबह 10 या 15 मिनट करना है, रोज रात में 10 या 15 मिनट करना है। जैसा हम एक पौधा लगाते हैं, अगर हम पौधा लगाए बाद में रोज अगर उसको पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, वो पौधा मुरझा जाएगा, कुछ काम का नहीं वो पौधा। उसी तरीके से आज जो आपके अंदर शक्ति जागृत हुई है, जिसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, अगर आप रोज ध्यान नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, वो आपको कोई हेल्प नहीं देगी। तो सबसे जरूरी है ध्यान, ध्यान ध्यान ध्यान। रोज सुबह 10 से 15 मिनट, रोज शाम को 10 से 15 मिनट। हम एक बार का खाना खाना भूल सकते हैं, लेकिन ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर रोज हमारे शरीर पे हम बाहर जाते हैं तो धूल आती है, धूल से हमारा शरीर खराब हो जाता है। हम रोज स्नान करते हैं, अगर हम स्नान करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, हमको अलग अलग रोग होंगे, अलग अलग डिसीज होंगे। उसी प्रकार से जब हम रोज अलग अलग माध्यम से गलत विचार आते हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप म्यूट पे जाइए ताकि जो डिस्टरबेंस आ रहा है वो ना आए। अशोक कुमार मिश्रा सर, कैन यू गो ऑन म्यूट? या थैंक यू। ऑल अदर पार्टिसिपेंट प्लीज गो ऑन म्यूट। सो क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग में जो भी गलत विचार आते हैं, टीवी से, न्यूज़पेपर से जो भी रॉन्ग विचार आते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं, उनका हमारे शरीर से दूर हो जाते हैं। जैसे हम नहाते हैं तो सारी धूल और डिसीज दूर हो जाते हैं, उसी तरह से ध्यान हमारे अंदर के आत्मा को, हमारे अंदर के बॉडी को क्लीन करता है। तो जैसा हमारा रोज नहाना स्नान करना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से हमारा रोज ध्यान करना जरूरी है। ठीक है। अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो कोई पर्टिकुलर डिसीज पे, जैसा ब्लड प्रेशर पे कैसा हम क्योर कर सके, डायबिटीज पे कैसा क्योर कर सके, तो आप पूछिए। अदरवाइज मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए अशोक मिश्रा सर को बोलूंगा कि आप 2 मिनट में टाइम मैनेजमेंट, 2 या 3 मिनट में टाइम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। आप म्यूट पे हो अशोक कुमार मिश्रा सर, आप म्यूट पे हो। Hello. I'll just briefly tell you about time management and क्योरिंग का भी आपने लिखा, तो क्योरिंग का तो बहुत इजी है, अपने आप क्योर हो जाते हैं आप। हमको एसिडिटी का प्रॉब्लम था बहुत 25 साल पहले, अभी एकदम नहीं है। सो टाइम मैनेजमेंट का क्या हो गया, एक स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे घर पे लोग मेहमान आने वाले थे, माने इन लॉज, फॉर सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली। एंड मैं गया स्टेशन पे उनको रिसीव करने के लिए, तो पता चला कि ट्रेन में का एक्सीडेंट हो गया। अब वो लोनावाला के आसपास कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या करें। सो आई रिटर्न होम विथ माय वाइफ एंड just put my attention on the problem on top of my head for few seconds only, and धर प्रिंट आउट आ गया कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, स्टेप्स आ गए। तो इमीडिएटली हमने अपने बच्चों को तैयार किया और उनको खाना पानी खिला करके वी वेंट आउट, क्योंकि अभी कब रात के पहुंचेंगे क्या मालूम नहीं। तो हम अपने गाड़ी निकाल करके हम लोग चले टूवर्ड्स लोनावाला, क्योंकि उधर ही एक्सीडेंट साइट था। सो वी डोंट नो कि वो हॉस्पिटल में है कि क्या है, कुछ नहीं। एंड सब शोले के सीन याद आ रहे थे, इतना खराब हमको लग रहा था। तो एनीवे हम लोग रास्ते में निकले तो एक यरोड़ा जगह आता है, वहाँ पर हमारे एक फ्रेंड थे, वो एडमिट थे हॉस्पिटल में। तो मैंने बोला यार इनको देखा जाए क्या, तो बोले कि हम मिस कर गए, नहीं जा पा रहे, चलो देख लेते हैं। अब आप सोचो कि माइंड वर्सेस अध्यात्म कैसा डिफिकल्ट चीज है कि आप एक्सीडेंट हो गया, आप उधर नहीं जा रहे हो, एक हॉस्पिटल में एक आपके फ्रेंड पड़े हुए हैं, वो बीमार है, वो तो कभी भी ठीक हो सकते हैं या उनका 1-2 दिन बाद में भी जा सकते हो। लेकिन मेरे माइंड में आया कि नहीं, उनको हम मिल के जाएंगे, क्योंकि फिर बाद में हो नहीं पाएगा, ऐसा लगा मेरे को। मैं वहां पर अपना गाड़ी लगाया, उनसे मिला, पता चला कि वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। आई लॉस्ट अबाउट 20 मिनट्स गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड कमिंग बैक। 20 तो आधा घंटा चला गया होगा हमारा। तो फिर मैं वापस किया, एंड जब मैं स्टेशन के पास से गुजर रहा था लोनावाला जाने के लिए, तो मैं सोचा कि अरे लोनावाला जाकर के एग्जैक्ट कहाँ जाऊंगा, इससे अच्छा स्टेशन में अभी कुछ मालूम होगा कि वो एग्जैक्ट पॉइंट बता देंगे तो वहाँ पर हमको जाने में सुविधा हो जाएगा, नहीं तो मैं कहाँ खोजते बैठूंगा। तो जैसे ही मैं स्टेशन की तरफ
ऊपर मैं गया ओवर ब्रिज पर, तो एक ट्रेन आके रुकी थी और उससे सवारी लोग ऊपर आ रहे थे उतरने, माने बाहर जाने के लिए। तो मैंने बोला इनसे पूछ लेते हैं कि रास्ते में कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई आप रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ? बोले हाँ है। तो वो लोग कहाँ पर होगा? बोला नहीं नहीं, सारे लोग इसी ट्रेन में आ गए हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अब हम ये ट्रेन पूरा खाली हो जाएगा और हमारे इन लॉज नहीं दिखाई पड़ेंगे इसमें, तब हम लोनावाला जाएंगे। पूरा ट्रेन खाली करके तब हम आके देखेंगे। तो उसके बाद विदिन फ्यू मिनट्स आई सॉ देम ऑन प्लेटफॉर्म एंड हमको इतना भागा दौड़ी नहीं करना पड़ा। दिस इज टाइम मैनेजमेंट बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप देखिए 20 मिनट अगर हमारा वहाँ पर मैं अपने फ्रेंड को मिलने नहीं गया होता तो ये ट्रेन नहीं आई होती और मैं सीधा लोनावाला चला गया होता, और वो 3-4 घंटे आना जाना 8 घंटा पूरा वेस्ट हो जाता था और क्या होता था मालूम नहीं। सो दिस इज प्रिसाइज टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, विच आई फेल्ट अमेजिंग, और सब के सब मिल गए इतना इजीली। थैंक यू सो मच। I hope you enjoyed this. Thank you, Ashok Kumar Mishra sir. And Richa ma'am asked, my mother have a thyroid. How this manage? Okay, so thyroid will be coming because of the Vishuddhi chakra. What you need to do is balance the left side, right side, and there is a foot soak technique. Because of a time limitation, we could not able to explain the foot soak technique today. But those who has a fill the feedback form, they have received the detail about how to do the foot soak technique, and they can do everyday foot soak technique for 5 and 10 minutes. So if you do the foot soak technique, I request you all other participants, can you please go on mute? All participants go on a mute. Okay, so then if you do a regular foot soak technique along with the meditation, your thyroid problem will go away immediately. Maybe you will observe in a month time, you will see a tremendous improvement. So also, if you want more information, you can join this WhatsApp group. We can post it on a chat, and every Sunday we are doing a regular meditation over a Zoom. In that we are teaching an advanced technique, because today we only explain you the introductory session, but it is not possible to explain you everything in one session. So you can join our Sunday session, you can join our WhatsApp group, you can join every Sunday 10 a.m. session. So hope this is answer your question, ma'am. Richa ma'am, if you have any more question, feel free to ask. Maybe any more question? Any more question? No, sir. I think no questions are there. No more questions are there, sir. Okay, okay. So we. You want to say something? Sir, 1 minute, sir. I want to say one sentence. Yeah, tell me. ये जो थायराइड का प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया कि मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो अपने आप ठीक हो गया, वैसे ये थायराइड का भी अपने आप ठीक हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम इनसाइड, वो जब एक्टिवेट हो जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. So we